Student, now we explain the some important part in human brain. That structure is not seen in lateral section or longitudinal section or transverse section point of view, but this part is most important part, and that part related to other type of functions in human activity, and this is the real part of human brain. The name is basal nuclei of the brain. It is the part of the forebrain. This structure is situated just lower part of the forebrain and middle portion of the brain. Suppose this is the cerebrum part, and this is the suppose lower region of this cerebrum, and this side is the upper region, and this middle part of this cerebrum present basal nuclei. The basal nuclei is very important part in human brain. This structure is the basal nuclei, and this structure is slightly looking like C-shaped or a specified type of structure. This structure is many regions. This part is called as lentiform nuclei. This region is called as caudal nuclei. These two are combinedly form the corpus stratum. This is the most common and important name. Corpus stratum formed with the help of lentiform nuclei and caudal nuclei, and this group like structure is called as claustrum. This structure is called as amygdaloid body, and this structure combinedly form the basal nuclei. So we write corpus stratum plus amygdaloid body plus claustrum is called basal nuclei. You know, in corpus stratum two structures are present, lentiform nuclei and caudal nuclei. It is lentiform nuclei and caudal nuclei. So lentiform nuclei or caudal nuclei combinedly form the corpus stratum. This corpus stratum plus amygdaloid body plus claustrum form the basal nuclei, and this basal nuclei is most important in human brain. It develop with the help of telencephalon. It developed with the help of telencephalon. You know, this telencephalon from the cerebrum part also, and this structure is present lower part of cerebrum, but mid region, or you say that internally situated. The mid region of that cerebrum part internally situated this basal nuclei. So in general this structure is not seen. Function. What is the functions of this basal nuclei? Its main functions. What is the functions? The main function is, first, they generally control the skeletal muscles. They control the functions of skeletal muscles, and a specific tension create in these muscles. A special tension create in these muscles. Tension is most important, यानी एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न करेगा. जैसे मेरे हाथ में कोई सी चीज़ को पकड़ कर मैं खींच रहा हूँ, तो मेरे हाथ के मसल्स में अगर पावर होगा, उसमें टेंशन होंगे, तो मैं उस वस्तु को खींच पाऊंगा. तो एक प्रकार का पावर, ताकत मांसपेशियों में ये क्रिएट करता है. सेकंड पॉइंट,
they maintain normal locomotion, they maintain the normal locomotion, and in general at the time of the locomotion the movement of hand automatically controlled by basal nuclei. So in the time of movement, or you say that locomotion, four limbs, or you say that hand automatically move, and that part controlled by basal nuclei. That means in the time of the locomotion, suppose we have to locomote, so our hand to right, upside, backside, upper side, any region, so automatically movement, यानी जब आप चलोगे तो आपके हाथ की जो गति है आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी हो रहा है उसकी पूरी गति को ये कंट्रोल करेगा basal nuclei. तो maintain movement या normal locomotion. In the time of movement or locomotion, four limbs automatically move and that part controlled by this basal nuclei. यानी हाथ के मूवमेंट को स्पेशली ये कंट्रोल करेगा और आपके जो नॉर्मल मूवमेंट है उसको बनाए रखेगा. अब मान लो ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी में केमिकल होते हैं डोपामाइन, वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये सारे फंक्शंस नॉर्मल होते हैं. लेकिन मान लो किसी कारण से हाइपोसिक्रेशन हो जाए, यानी बहुत कम हो, बहुत लेस अमाउंट ऑफ सिक्रेशन इन डोपामाइन, तो डिजीज हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज. ये पार्किंसन डिजीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइपोसिक्रेशन ऑफ डोपामाइन का सिक्रेशन बहुत कम हो गया. अगर डोपामाइन जो भी केमिकल्स है इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज होगा. इसके कारण क्या होगा? रिजिडिटी ऑफ मसल्स जो होंगे, रिजिडिटी मतलब अकड़ जाना, पूरी तरह से अकड़ जाएगा. यहाँ पर मैं टेंशन की बात कर रहा था, वो जरूरी है, वो फायदा है, वो स्ट्रेंथ दे रहा था, लेकिन अकड़ना मतलब टाइट हो जाना, ना आगे होना ना पीछे होना, किसी एक जगह पे टाइट होकर रहना, रिजिडिटी. दूसरा ट्रेमरिंग, TREMERING, ट्रेमरिंग ऑफ हैंड और legs in normal condition. आप मान लो कहीं पर बैठे हुए हो नॉर्मल कंडीशन में, उस समय हाथ पैर ऐसे कांप रहा, हाथ भी पैर भी, तो ये जो है इसको ट्रेमरिंग कहते हैं. और ट्रेमरिंग कंडीशन हो रहा है हाथ और पैर में, इस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट है ये, तो ये पार्किंसन डिजीज का कारण है. और एक इसमें मास्क लाइक फेस होगा, मास्क लाइक फेस. आजकल तो बोलना नहीं पड़ेगा, मास्क सभी जानते हो, यानी थोड़े फ्लैट हो जाएंगे या आगे की तरफ उभर आएंगे तो मास्क लाइक फेस हो जाएगा. इसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं. ये कभी कभी हो सकता है, किसी के, सबको नहीं होता है, और अगर ये हो भी जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो इसका ट्रीटमेंट में क्यों हो रहा था? क्योंकि डोपामाइन कम हो गया था, तो डोपामाइन को इंजेक्ट कर देंगे. डोपामाइन इंजेक्ट, डोपामाइन को इंजेक्ट करने पे ये बहुत हद तक सही हो सकता है. तो मैंने क्या बोला? दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ ब्रेन, एक्चुअल पार्ट ऑफ ब्रेन. That name is basal nuclei, not seen because it is found inner region of the brain, just lower part of the frontal brain, मतलब cerebrum region or cerebral region part, and this region presents some structure like the lentiform nuclei. Caudal nuclei is called corpus stratum, amygdala, claustrum,
these are combinedly called as basal nuclei. Development with the help of telencephalon, lower part of cerebrum but mid region internally situated, यही मैं कह रहा था आपको अभी. और functions है control the functions of skeletal muscles, a special tension create in the muscles, so straight and strength also develop, maintain normal locomotion in the time of the movement, the forelimb or hand movement directly control with the help of this basal nuclei. लेकिन इसमें कभी कभी डोपामाइन की कमी हो जाता है और ये कमी हो जाए तो इंसानों में रिजिडिटी यानी मसल्स का कट जाना, ट्रिमरिंग, कांपना हाथ पैरों का, मास्क लाइक फेस का हो जाना. ट्रीटमेंट क्या करें? डोपामाइन को इंजेक्ट कर दें, मे बी इट पॉसिबल टू ट्रीट. सो ये था बेसल न्यूक्लियाई. स्टूडेंट्स, वन स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू टर्म दैट इज रास. वन रास यू स्टडी in the excretory system, that is RAAS, renin angiotensin aldosterone system. It is another, and this is the other part. This is the part of the brain, and this RAS, the full form is reticular activating system. Reticular activating system is the part of human brain. This is the part of cerebrum. The part of cerebrum and their lobes, inner lobes also, the anal lobes of the cerebrum found this structure or RAS. This RAS is formed with the help of nerve fiber. So nerve fiber, RAS formed with specific nerve fiber. Their function is very quick and they have to very activated form. So myelinated nerve fiber form this type of nerve fibril region, and this myelinated nerve fiber form the RAS. What the function of this RAS? Main function is to more activated form. एक्टिवेटेड फॉर्म में आपको बनाए रखेंगे और कह सकते हो चौकन्नापन, हम चौकन्ना रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा. तो मोर एक्टिवेटेड फॉर्म ये आपको बनाने में हेल्प करेगा. मोर एक्टिवेटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रास. ये इसका इम्पोर्टेंट वर्क है. दूसरा, इट हेल्प टू वेक अप द स्लीप, सोते से जगने में. तो इट गेट अप और वेक अप टू स्लीप, ये हेल्प करेगा. यानी सोते से जगने में आपको हेल्प करेगा. गेट अप और वेक अप टू स्लीप, यानी सो रहे हो, रात को सो गए, सुबह उठ रहे हो, या दिन में सो गए, एक निश्चित टाइम के बाद उठ रहे हो, या आप सो रहे हो, किसी ने आके आपको उठाया तो आप नींद से छट से उठ गए. तो नींद में जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन का स्टेज, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का स्टेज कुछ अलग होता है, और तुरंत जगने के लिए आपके ब्रेन के जो एक्टिवेटेड पार्ट थे उसको डीएक्टिवेट होना होता है और दूसरे पार्ट को एक्टिवेट होना होता है. बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के एक्टिवेटेड फॉर्म में और ज़्यादा एक्टिवेट होना होता है. तो ये सारे बैलेंस करके आपको एक नॉर्मल कंडीशन में नींद से जगाता है. तो गेट अप और वेक अप टू स्लीप नींद से जगाने में सपोर्ट करेगा. और मोर एक्साइटेड फॉर्म, मोर एक्साइटेड, आपको किसी भी काम के लिए एक्साइटेड, तैयार रखेगा. आप हमेशा तैयार रहोगे किसी भी तरह के काम के लिए, और डलनेस नेचर को खत्म करेगा और एक्टिविटी जो होती है उस नेचर को आपके अंदर डेवलप करेगा. तो ये जो वर्क होते हैं ये वर्क है रास का. तो रास इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, इट नेम इज रेटिकुलर, नाम नहीं छुपा हुआ है. एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी आपको एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा. और ये जो है ये सेरिब्रम का फ्रंटल पार्ट, पैराइटल पार्ट, जो भी टेम्पोरल पार्ट उनका पार्ट उनके हिस्सों में है. और ये स्पेशल
जो माइलेटेड नर्व फाइबर होता है उनसे ये बने होते हैं। इसका फंक्शन होता है मोर एक्टिवेटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रास, आपको एक्टिवेट फॉर्म में रखेंगे, चौकन्ना बनाए रखेंगे, गेट अप और वेक अप टू स्लीप, नींद से जगाने में सपोर्ट करेंगे, एंड मोर एक्साइटेड फॉर्म में आपको बनाए रखेंगे। स्टूडेंट्स, इन द टुडे सेशन वी स्टार्ट द न्यू पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। यू नो, central nervous system is divided into two parts, brain and spinal cord. So today we explain the second part, spinal cord. We draw a diagram of spinal cord. At first we draw the structure of vertebra, because inside vertebra, the hollow region of the vertebra present spinal cord in a specific area. So at first we explain the vertebra. Vertebra is a bony structure and 26 vertebra, special small segmental part of the bones, and in between bones found the cartilage and the junction of interconnected part and form the vertebra. Vertebra is hollow and slightly S-shaped. It is hollow and slightly S-shaped structure, and this vertebra divided into 5 regions. That name is cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. Cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx, this is the 5 region of vertebra. Cervical is neck region, so this vertebra is generally number of the cervical vertebra is 7 in human being and all other animal, but some exceptions also present. Sloth and platypus, the number of cervical vertebra is 9 or 10, and sea cow or mantis, their number is also vary, not the same, it may be 5 or 6 etc. So cervical vertebra, the number of human is 7. Cervical vertebra is written as C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 etc. in this form, and it indicates with the help of C means cervical, thoracic T, lumbar L, sacrum S and coccyx C. These are the indicator part of this vertebra, and this region or this pore is connect to the generally upper region of skull. This part is the vertebra, this part is the vertebra, and this vertebra is S-shaped, and inside vertebra found spinal cord. The spinal cord found inside vertebra, Suppose this is the skull region, or this is the part of the brain, and this brain, the end part in this region is called as medulla oblongata, and medulla oblongata connect to spinal cord. Suppose this region to spinal cord in this region to spinal cord have to start, and spinal cord found into lumbar L1 region, and in this region to start spinal cord and found up to lumbar 1. Student, this is the spinal cord, and this spinal cord is also hollow structure, and this hollow part is called ventricles, same like human brain, but the name of the brain ventricles is first, second, third, fourth, fifth etc.
but here simply say that ventricles. The gap or hollow part of the spinal cord is known as ventricles, and in this region generally passes the cerebrospinal fluid. Same like the human brain, the ventricles passes the cerebrospinal fluid. So this spinal cord also passes the cerebrospinal fluid. Now this porous structure of skull region is called foramen of magnum. Foramen of magnum, and neuron start in the region of neurosil to end part of lumbar, any L1 region. Neurosil is the part of lower region of medulla oblongata, and lower region of medulla oblongata you see in the metasil, the fourth ventricular part, and metasil to end part you know is called neurosil, and this whole structure, porous structure, is called as foramen of magnum. And this region this region means cervical first region, the cervical first region C1, region 2 lumbar. Lumbar is the 5 vertebra, but this only found in the L1 region, only L1. L2, L3, L4, L5, this region is not connected to the spinal cord fully, and this L1 region, up to L1 region, found the spinal cord. That means C1 region to L1 region is the area of spinal cord. Spinal cord found cervical C1 region to lumbar L1 region. C1 to L1. Students, we say this part, we write down here, skull pore lower part of medulla oblongata is known as foramen of magnum. You know, this is the porous region of connection in between vertebra and skull, and this porous structure is called as foramen of magnum. So we write down foramen of magnum in this region, and this region, you know, the lower part of the medulla oblongata is seen the metasil, and metasil when connect to the lower part of the spinal cord is called as neurosil. So neurosil present in this region, and neurosil formed or surrounded with the help of epithelial tissue. That name is ependymal epithelium tissue. That is ependymal epithelium tissue surround whole part of neurosil, and neurosil is continuous to whole region of the spinal cord. So neurosil to total area is surrounded with the help of ependymal epithelial tissue. Spinal cord is surrounded by ependymal epithelial tissue, but it say that neurosil is surrounded that ependymal epithelial tissue. This region is called as the spinal cord. At first I explain this part. Students, अब तक मैंने आपको बताया कि इसमें जो वर्टिब्रा है, इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स और C1 से लेकर L1 तक रीजन, यानी सर्वाइकल 1 से लेकर लंबर 1 तक का रीजन, यही है वास्तविक रूप से स्पाइनल कॉर्ड का रीजन। और इस रीजन में जो पोर आपको दिख रहे हैं, हॉलो रीजन, इन सभी पोर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसमें CSF का फ्लो हो रहा है। अब देखो इस पार्ट में ये जो रीजन आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट एरिया है स्पाइनल कॉर्ड का। दैट एरिया इज रियल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एरिया स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है। C1 to L1, ध्यान से देखो, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा, L1 lumbar vertebra, and cervical to lumbar region found spinal cord। अब बात करते हैं कि सर एक एडल्ट में जो मेल हो और फीमेल, इसमें स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ कितना होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ये लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर। ह्यूमन बीइंग में जो इसके लेंथ है, वो लेंथ यहाँ C1 से लेकर L1 तक इट इज 45 सेंटीमीटर।
और सर इसका वेट कितना होता है, तो मेल हो या फीमेल इसका वेट नियर अबाउट 35 ग्राम होता है। इसका वेट बहुत कम 35 ग्राम के आसपास है, बट इसका वर्क बहुत ही परफेक्शन के साथ अपने जीवन में हर रिफ्लेक्स एक्शन को कराने में, क्रेनियल रिफ्लेक्स और उसके अलावा आपके स्पाइनल रिफ्लेक्स, बहुत सारे रिफ्लेक्स है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, इन सभी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा कराने में इनका रोल होता है। इसमें ब्रेन और ये दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं, ये अकेला भी काम कर सकता है, बट क्विकली जो भी वर्क होगा उसमें इसी का रोल होगा। तो आपने देखा C1 से लेकर L1 तक का जो रीजन है ये रियल में स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है और इसका लेंथ होगा 45 सेंटीमीटर, वेट होगा 35 ग्राम। अब देखो, दिस रीजन इज स्लाइटली स्वेल्ड एंड अपरिप्ट रीजन एंड दिस अपरिप्ट रीजन इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इसी को यहाँ पर वेंट्रिकल्स कहते हैं। दिस रीजन इज वेंट्रिकल। यहाँ पर ट्यूब लाइक है तो ट्यूबुलर हॉलो रीजन इसको कह सकते हो, ये ट्यूबुलर हॉलो रीजन है जो मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ, ट्यूबुलर रीजन और ट्यूबुलर हॉलो रीजन कह लो, ट्यूबुलर रीजन कह लो। तो ट्यूबुलर रीजन में हॉलो एरिया है, इसमें वेंट्रिकल्स एरिया है, हॉलो एरिया, वेंट्रिकल्स एरिया। यहाँ भी ट्यूबुलर रीजन में हॉलो और वेंट्रिकल्स एरिया है। तो इन वेंट्रिकल्स रीजन में आपको पता चल गया कि ब्रेन की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में भी हॉलो रीजन है एंड दिस हॉलो रीजन इज स्पेशली hollow because cerebrospinal fluid passes from this region. Cerebrospinal fluid passes from this region, and you know the structure function is the same like the brain and their meningeal region of the cerebrospinal fluid. The same function, same structure, same activity is performed in this region. The cerebrospinal fluid is the main and important fluid in the central nervous system, that means brain and spinal cord. This region, the end part is slightly swollen part, it is upripped and it is swollen, थोड़ा contract है, and this region is called conus medullaris। यानी यहाँ पर जो C1 से लेकर कोनस मेडुलरिस रीजन तक स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड फाउंड C1 to L1 एंड L1 रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड्स पार्ट एंड L1 रीजन spinal cord part is called conus medullaris, is called conus medullaris। यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि C1 टू कोनस मेडुलरिस के रीजन तक, क्योंकि कोनस मेडुलरिस वर्टिब्रल नंबर 1 L1 रीजन में है, तो C1 से कोनस मेडुलरिस रीजन तक ही रियल स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसका लेंथ हो गया। अब देखो, इस स्पाइनल कॉर्ड से एक पतला सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रहा है। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइलम टर्मिनल। यानी इस स्पाइनल कॉर्ड से जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको ग्रो करते हुए दिख रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसमें आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है, दैट नेम इज फाइलम टर्मिनल। इसका नाम है फाइलम टर्मिनल और इसका जो लेंथ होगा फाइलम टर्मिनल का, इसका लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर। यानी फाइलम टर्मिनल यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे रीजन में है और ये जो रीजन है इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर के रूप में होगा। फाइलम टर्मिनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये जो है एक अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। इस रीजन में जो अपर वाला रीजन है इसको फाइलम इंटरनम कहते हैं और ये जो लोअर वाला पार्ट है इसको फाइलम एक्सटर्नम कहते हैं। यानी ये 2 रीजन में डिवाइड है, फाइलम एक्सटर्नम ऊपर वाले पार्ट को फाइलम एक्सटर्नम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, और जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है उस रीजन को ड्यूरल शीथ कहते हैं। ड्यूरल शीथ डिवाइडेड 2 रीजन, इसे 2 रीजन में डिवाइड कर रहा है और नीचे वाले जो नाम है उसका नाम है फाइलम इंटरनम। सॉरी, ये फाइलम इंटरनम है, फाइलम इंटरनम, और इस रीजन को बोलते हैं फाइलम एक्सटर्नम।
दो रीजन में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला पार्ट का नाम फाइलम इंटरनम, नीचे वाला पार्ट का नाम फाइलम एक्सटर्नम। अब देखो, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किसने किया? ड्यूरल शीथ डिवाइड किया। ये जो फाइलम टर्मिनल है ये रियल में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो फाइलम टर्मिनल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके नीचे लोअर रीजन पे घोड़े के पूंछ के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को कॉर्डा एकिडना कहते हैं। ये कॉकिक्स के रीजन पे, यानी जो वर्टिब्रा का सबसे अंतिम पार्ट है कॉकिक्स, उस रीजन के ऊपर के एरिया में ये पाए जाते हैं, और इसे कॉर्डा एकिडना कहते हैं। दैट इज हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर। तो कॉर्डा एकिडना जो है वो हॉर्स टेल लाइक, घोड़े के पूंछ जैसा होता है, इसी का नाम है कॉर्डा एकिडना। तो ये जो है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये न्यूरॉन्स से बना होता है। इसके साथ भी कनेक्शन है क्योंकि न्यूरॉन्स इसमें भी बहुत कम मात्रा में लेकिन है, और इसमें भी CSF की फ्लो होता है, और इस कारण से ये रीजन भी इस प्रकार के फंक्शन को शो करते हैं। और CSF फिर यहाँ से ब्लड जो भी इससे रिलेटेड ब्लड है, आर्टरी है, उनसे होता हुआ फिर बॉडी के पार्ट, और बॉडी के पार्ट से फिर CSF बनकर फिर इसमें रिटर्न आ जाता है, जैसे ब्रेन में मैंने आपको बताया था। अब देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये जो आपका ब्रेन मैंने बताया था कि ब्रेन में जो मैनिंग्स होते हैं उसमें 3 लेयर होते हैं, डूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर, और ऐसा ही स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 रीजन होते हैं। सबसे बाहर होता है डूरामेटर, ये वाला होता है एरिकनॉइड, और ये होता है पायामेटर। तो 3 हो गया। और ये जो मैंने बाहर में ऐसा वाइट कलर में ऐसा दिखाया है, ये मैंने इंडिकेट किया है कि ये वर्टिब्रा है। दिस इज द वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी और इस डूरामेटर के बीच में गैप होगा, और रीढ़ की हड्डी और डूरामेटर के बीच में जो गैप है इसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस। तो दिस स्पेस गैप है, तो इट इज द गैप बिटवीन वर्टिब्रा एंड डूरामेटर। वर्टिब्रा एंड डूरामेटर, इस दोनों के बीच में जो गैप है इसका नाम एपिड्यूरल स्पेस। ये एक नया नाम आपके लिए है। बाकी सभी वैसे ही ब्रेन की तरह, डूरामेटर एरिकनॉइड के बीच में सबड्यूरल स्पेस, एरिकनॉइड पायामेटर के बीच में सब एरिकनॉइड स्पेस, और इसमें भी CSF का लिक्विड होगा। CSF का लिक्विड एरिकनॉइड विलाई से होता हुआ, इसको भी एरिकनॉइड विलाई बोलते हैं। ये क्रेनियल वेनस साइनस है, या इसको ड्यूरल वेनस साइनस भी कह सकते हो। तो ये इनसे होता हुआ फिर ये लिक्विड यहाँ से आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से होता है इनके पास जो भी ब्लड के कनेक्शन है, आर्टरी वेन, उनके पास चला जाएगा। इस प्रकार से फ्लो इसमें भी आप देखोगे, और ऐसा फ्लो जो ब्रेन में आपने देखा था वैसे इसमें भी होता है। और ये रीजन ब्रेन के सबसे इनर रीजन होगा, और डूरामेटर सबसे बाहर। तो ये आउटर पार्ट में होगा, और ये जस्ट कनेक्ट टू वर्टिब्रा, लेकिन इनके बीच में गैप होगा। इस गैप को एपिड्यूरल स्पेस बोलेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। और ये जो पायामेटर है, ये पायामेटर का रीजन, ये रीजन ये इनर रीजन होगा, और ये जस्ट नियर टू स्पाइनल कॉर्ड होगा। अब देखो, ये जो फाइलम टर्मिनल देख रहे हो, ये नीचे वाला एरिया, ये तीनों में, यानी जहाँ से C1 से लेकर L1 तक का जो रीजन है, इस रीजन में रियल में तीनों मैनिंग्स होंगे, डूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर। बट इस रीजन में फाइलम इंटरनम और फाइलम एक्सटर्नम रीजन में जो होंगे उसमें थोड़ा अलग पॉइंट बनेगा। इसमें भी ये स्ट्रक्चर्स होंगे क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट है और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन में सपोर्ट करते हैं, और इसमें भी छोटे सारे नर्व्स और साथ में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये सब मिलजुल कर इस फंक्शन को पूरा करते हैं। तो इस फाइलम इंटरनम के रीजन में केवल 2 मैनिंग्स होंगे, और इसका नाम है डूरामेटर एरिकनॉइड। तो फाइलम इंटरनम जो देख रहे हो, इसमें डूरामेटर और एरिकनॉइड होगा अप टू S2 रीजन तक। यानी इसमें अगर देखें फाइलम इंटरनम रीजन पे, तो ये फाइलम टर्मिनल का रीजन है, इसलिए फाइलम नाम दिया गया है। और फाइलम इंटरनम रीजन पे अगर आप देखोगे तो दो लेयर होंगे, और एक का नाम होगा डूरामेटर, एक का नाम होगा एरिकनॉइड। इसमें पायामेटर नहीं होगा। और इस रीजन पे अगर आप देखोगे फाइलम एक्सटर्नल रीजन पे, तो इसमें केवल पायामेटर होगा, इसमें बाकी कुछ लेयर नहीं होंगे। तो इस तरह से इस फाइलम इंटरनम में डूरामेटर एरिकनॉइड अप टू S2 एरिया तक जाएगा,
और फाइलम एक्सटर्नम पूरा का पूरा ओनली कंप्लीट फॉर्म ऑफ द फाइलम एक्सटर्नम ये बना होगा पाया मैटर से। तो ये कुछ एरिया है जो आपको समझना है। तो इस रीजन पे ओनली पाया मैटर है। इस प्रकार से इसके जो मैनिंग्स होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये रियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट को जब आप स्टडी करते हो तो उसके मैनिंजियल रीजन को जब स्टडी करते हो, और जो मेडिकल कॉलेज में जब आप जाओगे तो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एनाटॉमिकल टॉपिक में ये मैनिंजियल टॉपिक आपको पढ़ाएगा भी, और ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो ये मैनिंजियल रीजन उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब देखो इसमें ये जो फाइलम टर्मिनल है, इस फाइलम टर्मिनल के मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ड्यूरल स्पेस ने इसे ड्यूरल शीथ ने दो रीजन में बांट दिया, और ये जो नीचे हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, कॉर्डाइकिडना बन गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, वो क्या है सर? देखो कभी कभी क्या होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद जब डिलीवरी बच्चे का होना होता है तो उस बच्चे की डिलीवरी के समय सपोज कोई क्रिटिकल केस बन गया और सीजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा। अब सीजेरियन में अगर एनेस्थेसिया देंगे तो बच्चा पेट के अंदर जो है वो बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है। तो डॉक्टरों ने एक नया तरीके निकाले कि भाई हमारा जो वर्टिब्रा होता है उसमें कुछ ऐसा रीजन ढूंढो जिस रीजन में कुछ केमिकल, इनहिबिटरी केमिकल जो इम्पल्स को इनहिबिट करे वो पुश कर दें। तो उससे क्या होगा? उससे एब्डोमेन से लेकर लोअर रीजन तक पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, सेंसेशन लेस हो जाएगा, और फिर ये अपर रीजन नॉर्मल रहेगा। अब अपर रीजन नॉर्मल है मतलब होश में है, लेकिन लोअर रीजन शून्य हो गया, इनर्ट हो गया। अब ऑपरेशन के लिए इस पेट को काटा गया, बच्चे को निकाल लिया गया, दर्द भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ होता है, किस पॉइंट पे होता है? तो देखो ये जो L3 L4 है, नो डाउट इस रीजन पे फाइलम टर्मिनल है, तो न्यूरॉन्स इसमें इंटर कर रहे हैं और न्यूरॉन्स सिनेप्सिस फॉर्म में बने हुए हैं। L3 L4 रीजन यानी ये जो आप लंबर वर्टिब्रा देख रहे हो, लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, L1 L2 L3 L4 और L5। इसमें L3 यानी ये L3 और ये L4 ये डॉक्टर्स इंडिकेट कर लेते हैं कौन सा है, और इन दोनों के बीच में यानी इस कमर वाले क्षेत्र में यहां पर होगा ये, और L3 और L4 के बीच में जो कार्टिलेज है इस रीजन पे एक इंजेक्शन सेंटर करा करके इसमें से स्पेसिफिक लिक्विड इसके अंदर डाल देते हैं, और डालने पे यहाँ सिनेप्सिस ब्लॉक हो जाता है, सिनेप्सिस खट जाता है। सिनेप्सिस ब्लॉक हो गया तो नीचे के एरिया में कोई सेंसर नहीं जाएगा, और नीचे के एरिया को कंट्रोलिंग पॉइंट ऊपर से जो भी ब्रेन से आ रहा है उनको भी रोक देगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ इनर्ट हो जाएगा। इसको लंबर पंचर कहते हैं। याद रखना, वन टर्म इज लंबर पंचर, वन टर्म इज लंबर पंचर। इसका मतलब है कि इन द रीजन ऑफ L3 एंड L4 इंजेक्ट इनहिबिटरी केमिकल, इनहिबिटरी केमिकल्स, इसमें इनहिबिटरी केमिकल्स दिए जाते हैं, एंड दिस केस इज कॉल्ड लंबर पंचर। इसे ही लंबर पंचर कहते हैं। यानी L3 और L4 के रीजन में इंजेक्शन देकर पूरे के पूरे लोअर पार्ट को, एब्डोमेन से लेकर लोअर पूरे पार्ट को इनर्ट कर दिए, दैट नेम इज लंबर पंचर। और ये जो लंबर पंचर एरिया है कौन सा है? L3 और L4 के बीच में, इन बिटवीन L3 एंड L4। दिस इज द लेवल ऑफ लंबर पंचर। इसी को लेवल पंचर का लेवल कहते हैं, और लंबर पंचर के फॉर्म में इनर्टनेस नीचे आ जाता है। फिर वो केमिकल कुछ देर के बाद ऊपर की तरफ भी जाने लगते हैं, क्योंकि सिनेप्सिस यहाँ तो आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन दूसरे नर्व जो बॉडी से घूमते हुए ब्रेन तक जा रहे हैं वो फिर उस केमिकल को पहुँचा देते हैं ब्रेन तक, और वो जो फीमेल है कुछ देर बाद बेहोश हो जाती हैं, और फिर जैसे केमिकल का इफेक्ट खत्म होता है फिर नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरह के हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, कंप्लीट हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट्स। स्पाइनल कॉर्ड फाउंड इनसाइड वर्टिब्रा। Inside vertebra, it is a hollow structure, and in this region, starting point of foramen of magnum to lumbar region is the region of the spinal cord, and this foramen of magnum region start into the C1 region, and C1 is called the cervical region. So you say that cervical region to lumbar region is the area of spinal cord, and the length is
45 centimeter and weight is 35 gram. And in this region of the spinal cord, it also the hollow region present, and this hollow region CSF also passes in this region, and this region is called as the ventricles of the spinal cord, and this region CSF have to flow. And the end part or L1 region is end part of the spinal cord or L1 region of the spinal cord is called as conus medullaris, and up to C1 to conus medullaris, or you say that C1 to L1 region is called the real part of spinal cord. And conus medullaris to lower region arise a tube-like structure that is called phylum terminal, and this terminal formed with the help of fibrous connective tissue, and it divided into two regions with the help of dural sheath. The upper region is called phylum internum and lower region is called as phylum externum. Upper region of the phylum internum formed with the help of durameter and arachnoid, and lower region formed with the help of only pyometer. But the real region of the spinal cord, that is C1 to L1 region, formed with the help of durameter, arachnoid, pyometer, both the structural part. अब आप बात ध्यान रखना, कभी कभी कुछ डायग्राम आपको ऐसे मिल जाएंगे कि ये वाला पार्ट इधर बना हुआ रहेगा, वो भी सही है सर कैसे? जैसे सपोज कीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये है स्पाइनल कॉर्ड का मैनेजियल रीजन, और ये मैनेजियल रीजन इसको पूरे कवर किए हुए हैं, राइट? अब ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसको पूरा कवर किए हुए है। जब इसको आप खोल रहे हो ऐसे करके, तो खोलने पे क्या होगा, अंदर का जो रीजन आपको पास में था, ये रीजन मान लो सबसे पास था किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, और ये रीजन कौन सा है, ये पायोमेटर का रीजन है, तो ये पास है। अब ऐसे करोगे खोलोगे तो पायोमेटर रीजन दूर चला जाएगा, फिर एरिकनॉइड, फिर डुरामेटर अंदर की तरफ। तो कभी कभी कुछ जगहों पे कंफ्यूजन हो सकता है किताबों में देखकर कि ये डायग्राम इधर बना हुआ रहेगा, फिर ये बीच में तो वही रहेगा, लेकिन ये डायग्राम बाहर की तरफ रहेगा, तो भी उसका मीनिंग वही है कि इसको खोल करके जब दिखाया जा रहा है, ये मान लो किसका पार्ट है, तो ये पायोमेटर का पार्ट है, और ये कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसके साथ ऐसे राउंड फॉर्म में। अब जब आप इसको खोलोगे तो ये ऐसे खुलते ही ये सबसे बाहर चला गया, यानी ये डायग्राम जब बनाओगे इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाना होगा, तो सबसे बाहर क्या दिखेगा, पायोमेटर, एरिकनॉइड, डुरामेटर। तो खैर ये मैंने आपको एक क्लू के रूप में बताया कि अगर ऐसा डायग्राम बन जाए तो भी आपको समझना है कि सबसे आउटर रीजन पे डुरामेटर होगा, क्योंकि यही कनेक्ट होगा वर्टिब्रा के पास, और इन दोनों के बीच में गैप को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, और ये जो है गैप बिटवीन वर्टिब्रा एंड डुरामेटर एपिड्यूरल स्पेस के रूप में। और न्यूरोसिल बना होगा एपेंडाइमल एपिथेलियम टिश्यू के रूप में, फाइलम इंटरनम और फाइलम एक्सटर्नम के पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। इस स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है हमारे हाथ, पैर, बॉडी और डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गन है इसके मूवमेंट कराने में। हम आप चाहते हैं कि हाथ कैसे घुमाएं, ब्रेन से ऑर्डर जा रहा है, तो ये ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। एक्सीडेंट में किसी का स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रा डैमेज हो गया और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ रीजन अफेक्टेड हो गया, तो जो रीजन अफेक्टेड होगा, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हाथ उठाना है, सपोज करो हाथ वाला कंट्रोलिंग पार्ट अफेक्टेड हो गया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया हाथ उठाना है ऐसे, या जिधर भी कुछ करना है, मूवमेंट लेना है हाथ में, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का वो रीजन काम नहीं कर रहा है, तो ये हाथ के मूवमेंट या पैर के मूवमेंट जिस रीजन के अफेक्टेड हो गए उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन में तो रोल है ही, साथ में नॉर्मल एक्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके कारण ही हम नॉर्मल चलना, बोलना, जो भी एक्टिविटी होता है वो बॉडी एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा इज डिपेंड अपॉन डायरेक्टली विद द स्पाइनल कॉर्ड, एंड this structure is complete in this form. Okay student.